କଟକର ଶାରଳା ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି 35ତମ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚିକିତ୍ସକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ଏବଂ 15 ତାରିଖ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। 14 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜିବିସନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଜନସାଧାରଣ ସେଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଚିତ୍ର ସମୂହକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ପରେ ପରେ ସୁମନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରଥମେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପିକା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାଗତ। ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା ସହିତ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅତିଥିଙ୍କ ସମେତ କକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। It gives me a great joy and satisfaction to speak few words as I am not able to be physically present on this beautiful occasion of 35th All Odisha Conference of Sri Aurobindo Medical Association, where the young doctors from all over Odisha are participating to discuss, to deliberate, and to bring new light into the complete health of human being in a holistic approach. My loving friends, first I give my heartfelt congratulations, appreciation, and also gratitude to the eminent doctors, those who have been participating and guiding these young doctors, and especially my loving mother, Dr. Shyama Kanungo. I wish and pray to God that this conference will not only be successful, will bring a new light, new hope, new era in medical science, in our study, our research, and also implementing in human health and shedding new light to the whole world. ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ବାଦଲ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀର ସାଂଗଠନିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶ୍ୟାମା କାନୁନଗୋ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଥିମ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଏନ୍ଏମ୍ସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର BN ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ମରଣିକାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ହୋଇଥିଲା ଲୋକାର୍ପିତ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସମ୍ମିଳନୀକୁ କରିଥିଲେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଉମାକାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜକ ସଂଘକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଏବଂ ଅତିଥି ବକ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର BN ଗଙ୍ଗାଧର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଥିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିଲେ ସକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ। ପରେ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ସୁଧୀର କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଙ୍କ ସମେତ କକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ
अर्पण करथिले धन्यवाद। उद्घाटन उत्सवर परिशेषରେ गान करा जाइथिला वंदे मातरम। श्री अरविंद मेडिकल एसोसिएशन चलित वर्ष है 35तम माने वार्षिक उत्सव। ए वर्षर थीम हूँ होलिस्टिक मेडिकल अप्रोच। तार कारण हूँ सामग्रिक स्वास्थ्य शिक्षा। आम सब एलोपैथिक चिकित्सा पर भरोसा नक आम आयुर्वेदिक होमियोपैथी फिजियोथेरापी योग यूनानी ये सबको आम प्राधान्य दौचु एवं ये जो सामग्रिक स्वास्थ्य शिक्षा ए विषय ए वर्ष आलोचना होती एवं बहु भारत और बहुत गण्यमान लोक ये आसती भावुची यार प्रभाव समस्त पर पड़ो। सेप्टेम्बर 14 तारिख पूर्वाह्न प्रथम आलोचना चक्र थिला विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सामग्रिक विकास। यह आलोचना मंच में उपस्थित थिले ख्यातिसंपन्न नियामक आलोचक एवं विशेषज्ञ। आम सबू स्कूल गुड़िक परिवेशर गोटे मूल आकर्षण परिवेश करने कथा कारण पिलांकर स्कूलटा एमती हवा दरकार जे पिला माने स्कूल को सबुदिन मन पकेबे और आसवा को आग्रह प्रकाश करेंगे एवं से जो ग्रीनरी सिचुएशन जो सुंदर परिवेश ता भीतर आम किसी औषधीय वृक्ष भी रखिपर जोटा कि आमर सबुदिन नित्य नैमित्तिक कार्य लगे पिला मानकु से विषय भी धारणा देवा दरकार। तुलसी है ये अपराजिता है जेकोसी गछ औषधीय गुण अच्छी से गुड़िक लगे कथा। स्टूडेंट मानकर केमती मेंटल आउ इमोशनल हेल्थ रे की इश्यूज रुहे आउ केमिति ताकू आमे केमिति भल करि परिबा। तो जो छुआ मानकर मेंटल हेल्थ इश्यूज जेमिति कि रागी जिबा कि चिड़चिड़ापन हवा कि तांकर एमती डिप्रेशन भी तांको मेजरे हेई पारे तो राग आसी जाई पारे तो से सब इमोशनल इश्यूज जेमती कि बेड वेटिंग हेई पारे कि बुलिंग हेई पारे कि तांकर सब्सटेंस किछि यूज सेटा हेई पारे तो यही सब इश्यू विषय समस्त को जानिबा दरकार। तो तापाई गोटे बहुत महत्वपूर्ण रोल रोची तांकर पेरेंट्स तांकर टीचर्स आउ प्लस तांको संगे जो स्टूडेंट्स माने अन्य स्टूडेंट्स अछंती। पिलाटी स्कूल रे 5 ରୁ 16 वर्ष जाए तार सर्वाधिक समय बीतई थाए। घर को छाड़ले स्कूल तार होची द्वितीय घर। बेले बेले पिला माने मध्य आवासिक स्कूल रे रहंती जेतेबेले से सर्वाधिक समय स्कूल रे मध्य बिताई थांती। तेणु सेमानंकर सांग साथी आउ शिक्षक मानक संगे इंटरेक्शन होता है। बहुत लोकों संगे मिसी थांती और बहुत कथा शिखी थांती। बहुत भूल भटकरा करती एवं सेगुड़िक मध्य सेमानकु करेक्ट कर दि जाए थाए। तेणु स्कूल रे आमर जदि स्वास्थ्य व शिशुर स्वास्थ्यर उन्नति करने आम चाहिए ताले सर्वांगीन उन्नति दरकार। तार शारीरिक बौद्धिक मानसिक गोटे सुस्थ परिवेश देले पिलाटीर सर्वोपरि सर्वांगीन विकास हो पार आ से जड़े भल नागरिक और भल मनीष हो पार। से समस्ते चेष्टा करवा दरकार। स्कूल प्रत्येक शिक्षक स्कूल अभिभावक वृंद बा जो माने तांकर मैनेजमेंट ग्रुप रे रहउछन्ती स्कूल से माने स्कूल वातावरण को एमती रखिए जमती कि पिलाटी स्कूल को आसिया पसंद करिवो। सामग्रिक स्वास्थ्यर विषय कल्पना चिंता ए विषय अनेक लोक माने जानि नथिले। प्राय 70% लोकंकर मतामत थिला आम से फॉलो करूना। तेणु स्कूल रे स्वास्थ्यर विभिन्न भाव अच्छी। स्कूल पिला लोक मान भीतर इंटरेक्शन तथा स्टूडेंट तार बापा माँ शिक्षक शिक्षक स्टूडेंट यही इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टान्स अच्छी। या व्यतीत परिवेशटा निर्मल हवा दरकार अच्छी एवं निर्मलतार शिक्षा देवाक अच्छी। कल गोटे प्रश्न पचारे स्कूल रे हाथ धोइबार फैसिलिटी रहा दरकार कि नहीं। 70% लोक रेस्पॉन्ड कले एमती किसी निहाती आवश्यकता नहीं किंतु प्रकृत निरामयता कौन रहिबो शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य प्लस आध्यात्मिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्वास्थ्य यही पिला माने एठू गले समाज रे चलिबे केमिति चलिबे छोट छोट कथारे भांगी पड़िबेनी याकु एथिपई मध्य तांको ट्रेन करिया पड़िबो एवं सशक्त करिया पड़िबो। एथिपई प्रथमे दरकार यार शिक्षा घरु ही आरंभ हेबो एवं जो माने शिक्षा देबे बापा माँ एवं शिक्षक समस्ते एकाठी देबे एवं से प्रथमे निजको सशक्त करिवे तापर आध्यात्मिकता तांको मने रहिलो से ऑटोमेटिक पिलांक पाखु चली आसीबो। मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिबा नेशनल मेडिकल काउंसिल अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर डाक्टर बीएन गंगाधर एही प्रकार सम्मेलन गुरुत्व को उपलब्ध करथिले। Very educative. Several viewpoints came up.
I was happy to learn that the Orissa Health University is going to consider this as a form of curriculum. In the ATCOM module, which the NMC proposes and has been introducing the communication skills, ethical practices are all in fact in the interest of the patient. These come from several of the spiritual practices themselves. Doing good to others while doing good, being ethical, and being ethical with skillfulness. The Yogacharya says, Yoga Karmasu Kaushalam. If yoga is a spiritual practice, Karmasu Kaushalam, being perfect in what we are doing, is itself yoga. So, health practices which are practiced with utmost perfection and with that genuine intention of getting the person better are all elements of spirituality which get expressed in our profession, and those are already inculcated directly or indirectly into our training. सम्मानित अतिथि भाव में जोग देइथिबा ख्यातिसंपन्न शल्य चिकित्सक तथा ओडिशा स्वास्थ्य सेवा विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डाक्टर मानस रंजन साहू सम्मेलन आवश्यकता को देइथिले गुरुत्व। एक्चुअली वर्तमान देश में जो मेडिकल पाठ्यक्रम चली एथिरे कौनसी क्षेत्र में पाठ छड़ा केबे स्पिरिचुअलिटी विषय डिस्कसन होनी आउ जड़े डाक्तर हवापाई गोटे पूर्णांग डाक्तर हवापाई खाली डाक्तर हेले हेबनी तार स्किल तार पाठपढ़ा सहित तार एम्पाथी सिंपाथी ये सब जिनस रहा दरकार। रोगीर सब एक्सपेक्टेशन रोचे जे से डाक्तर को गोटे डिफरेंट लेवल देखुची। आपन जेतले बेड रे सोइबे कि आपन जेतले ओटी को आसी जेबे ऑपरेशन टेबल उपरे आपन पई सेतबे आउ चारा किछि नाही। आपन भाबिबे मु डाक्तर पाखरे संपूर्ण भाव समर्पित कारण आपन भाबिचंती जे ए लोक मते सब भलो करिवो किंतु से लोकर से माइंड सेट तार से कैरेक्टर तार से इंटीग्रिटी ताकू बढ़ाइबा पई एई भलिया जिंस ए पाठ्यक्रम रे रहिबा दरकार। आ आजिकाली जो सिचुएशन वर्तमान जो युवा पीढ़ी जो माने कि एक्चुअली भाबुचंती कि पाठ पढ़ाटा गोटे खाली जस्ट गोटे पाठ पढ़िले मु गोटे डाक्तर हो गले कौन हम ना मु बहुत धनी होइजिबी बड़ गाड़ी चढ़ी बहुत लोक जानवे बट डाक्तर हवाटा गोटे सहज कथा नुहे। समस्त तो डाक्तर होइजिबे बाय डिग्री किंतु ता भितर किए भल डाक्तर कहीं डाक्तरी प्रोफेशन रे खोजा होची किए भल डाक्तर कबे आपण सुनिचंदी किए भल इंजीनियर किए भल पॉलिटिशियन किए भल पुलिस ऑफिसर के पचारिबार कि समस्ते पचार ए भल डाक्तर किए कहीं खोजती लोक खोजती जे यही डाक्तर पाखु गले से मते ठीक चिकित्सा करेंगे और ठीक कथा कहे तो यही जो माइंड सेट और मेंटालिटी बढ़ाइबा पाई यही स्पिरिचुअलिटी भली जिनस मेडिकल पाठ्यक्रम रे रहिबा दरकार। दृश्य श्राव्य माध्यम डाक्तर रेबा कानूनगों संदर्भ थिला कीटाणु चेतना परे परे डॉक्टर आलोक पांडे सामग्रिक नर्सिंग संपर्क रे प्रदान करथिले सारगर्भक मंतव्य। I thank the organizers for support for this opportunity to be a part of the very important endeavor to shape the young minds of future doctors through holistic medicine. जय माँ। उड़ीसा के नर्सिंग और मेडिकल कॉन्फ्रेंस में सभी को नमस्ते। विषय है होलिस्टिक नर्सिंग एजुकेशन। तो होलिस्टिक का अर्थ ये है कि मनुष्य केवल देह नहीं है और वो लिविंग है तो उसके अंदर प्राण ऊर्जा भी है। तो जब हम मरीज को के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम क्या केवल उसको देह के रूप में देख रहे हैं या उसको एक प्राण जीवंत सत्ता, आर वी ट्रीटिंग द बॉडी एज ए डेड बॉडी और ए लिविंग बॉडी। तो डेड बॉडी जब होता है तो आप उससे कोई अपेक्षा नहीं करते हो, वो तो मृत है। तो लिविंग बॉडी से भी जब हम कोई अपेक्षा नहीं करते हैं कि शरीर अपनी ओर से कुछ करेगा हील करने के लिए, तो हम वास्तव में वस्तुतः उसको डेड बॉडी के रूप में ट्रीट कर रहे हैं।
और जबकि होना ये चाहिए कि शरीर एक लिविंग क्रिएशन है, और जैसे अन्य पशु पक्षी प्लांट ये सब लिविंग हैं, और ये अपने अंदर से ही हीलिंग की चेष्टा करते हैं और होते भी हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन का जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत अधिक यूटिलिटेरियनिज्म, इसके बैकग्राउंड में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इस पर बात हुई है, बहुत सारा चर्चाएं हुई हैं कि कैसे इसके पीछे एक धन, जहाँ भी धन जुड़ जाए तो मान के चलिए कि वहाँ पर कोई चीज़ विकृत हो गई है। छोटी सी चीज़ है, पहले भी बातें हुई हैं, एक हमारे अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पावरफुल यंत्र मतलब उपकरण है जो प्रकृति ने बनाया है, और आम तौर पे हम उसका बहुत कम उपयोग करते हैं। और कहूँगा तो बड़ा आश्चर्य होगा कि एक ऐसी इंद्रिय है हमारे अंदर जिसको आप इतने अधिक उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन उसका हम केवल एकमात्र, कोई पूछे आँख से क्या करते, बोलते हैं देखते हैं। देखने का अर्थ है कि आप एक रिसीव करते हो इम्पैक्ट, लेकिन आँख से आप केवल देखते नहीं हो, आँख से बहुत कुछ आप कन्वे करते हो। स्वास्थ्य विषय को सफलतार सहित परिवेषण करिवार रहस्य संपर्क में युक्तियुक्त मत प्रदान करथिले प्रोफेसर डाक्टर नित्यानंद स्वयं। समस्तଙ୍କର स्वार्थ रही स्वास्थ्य उपरे, किए बा सुस्थ रहा न चाहे, समस्ते चाहती, किंतु ये स्वास्थ्य को आम जो आलोचना होची याकू कहा जाउची जे होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ। होलिस्टिक माने गोटे संपूर्ण, संपूर्ण माने कौन एकाधिक जिनस अच्छी बोली तो आम संपूर्ण बोली कहवा, एकाधिक कौन आम मैंने ये पर्यंत जिते बड़े स्वास्थ्य विषय आलोचना करुचे बा आमर जो साधारण धारणा ये सब गुड़ाक हूँ आमर देह को लेकिन, जदिओ आमर मन विषय डाक्तर अच्छा डाक्तरखाना मेडिकल कॉलेज रे आउ समाज विषय अलग डाक्तर भी अच्छा, किंतु आम माने साधारण भाव में गुरुत्व दौचे शारीरिक स्वास्थ्य उपरे। मानसिक स्वास्थ्य ये पर्यंत भी अवहेलित ही रही, सामाजिक स्वास्थ्य सबुठारु बेसी अवहेलित ही रही। मोर जदि समाज सहित संपर्क भल नाही, मोर निजर जदि मन भल नाही, मोर शरीर केबे सुस्थ रही पारिबनी। तेणु यही हूँ जे स्वास्थ्य को ठीक भाव में रखापी आमको गोटे संतुलन रक्षा करने को पड़ो, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य आउ सामाजिक स्वास्थ्य भितर। अनेक गुरुत्वपूर्ण संदर्भ आलोचना करने निमंत्रित होते राज्य बाहर विशेष विशेषज्ञ एवं प्रदान करते जुगोपयोगी तथ्य। Sri Aurobindo said that spirituality is the essence of Indian mind, and it is necessary to declare that the core of humanity, of people of India, is spirituality, and we must incorporate it in every aspect of our human activity. And this he said even before before the independence of India was achieved. So he could foresee that India would become politically free, but he knew that what is required for a true and liberated India is resurgence or awakening to the spiritual truth. And I am very sure, I feel very privileged to be part of this unique conference. This theme is on holistic medicine, which is very close to my heart, because in Pondicherry we have started this holistic medicine institution called Institute of Salutogenesis and Complementary Medicine at Sri Balaji Vidyapeeth, where I was Vice Chancellor 11 years ago. And that has grown by leaps and bounds, and I wanted to share that experience here. And we offer holistic care, incorporating modern medicine with all super specialty care, along with human touch in a holistic way, mainly provided by yoga therapy and music therapy. And I wish to share that experience with them to help
the various delegates understand what is going on in Pondicherry. So I have been working with consciousness paradigms for a long time, so for nearly 40 years, and it was my dream that one day that what work we are doing on consciousness and health, consciousness and psychology, spirituality and psychology, spirituality and health must come in the medical curriculum. So I am happy that step has been now being taken, and in this conference this focus is on how the spirituality in health can enter the medical curriculum. In the first aspect, the patients, we need to tell them that the body is not a machine, it is a conscious instrument with the immense capacity to heal from within. So we need to tell the people that they need to trust their bodies, they need to learn how to connect with their bodies from within, and to learn how to awaken this capacity to heal from within. This can be done in multiple ways. Yoga, meditation, mindfulness, spiritual practices are one of them. The second aspect is changing the way we doctors work, behave and conduct our work in the public space. We also need to understand and learn to respect the human body as something very sacred, as a conscious instrument, as an instrument of the divine, and to infuse this trust amongst our patients so that they learn to trust their bodies and they learn to heal themselves in a much more holistic manner. The third important aspect is the medical education. 2 दिन धरी आलोचना करा जाइथिला सामग्रिक स्वास्थ्यर विकास एवं प्रणयन समेत आवश्यकता संपर्क में गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आमे गोटे थीम रखीचु जहाँकि होलिस्टिक मेडिकल एजुकेशन बा सामग्रिक स्वास्थ्य शिक्षा स्वाधीनतार दीर्घ 80 वर्ष परे आमे प्रचेष्टा करुचे जे आम शिक्षा व्यवस्था रे स्पेशली डाक्तरी शिक्षा व्यवस्था रे आध्यात्मिकता रहू गोटे रोगीटी को डाक्तर गोटे देह बा मन बोली न भावन्तु गोटे चैत्य सत्ता गोटे आत्मार स्वरूप बोली भावन्तु जाफल कि चिकित्सा पद्धति बदली जीव रोगीर विश्वास बदली जीव डाक्तर दायित्व बदली जीव आउ समग्र समाज समग्र राज्य समग्र देश गोटे सुस्थता आड़े मुहाइब। सामग्रिक स्वास्थ्य ही सठिक बौद्धिक विकास चाबिकाठी सुस्थ एवं सामग्रिक व्यक्तित्व ही समाज और देशर प्रगति को जोगाइब सकारात्मक प्रदर्शन। श्री अरविंद एवं श्रीमां स्वप्न निश्चित भाव दिने न दिन होइब पूरण। स्पिरिट और मैटर दुईटा जाक जो सत्य ब्रह्म सत्य जगत भी सत्य सबू जदि ब्रह्म जगत भी मिथ्या नुह जगत भी सत्य एवं विवर्तित होची जगत गोटे आहुरी आहुरी उच्चतर स्तर को आहुरी आहुरी उज्जवलमय स्तर को आ सेथिपाई तो सृष्टिटा है ब्रह्म निजको साकार रूपे निजको प्रकट कले आहुरी आहुरी मोर एंड मोर परफेक्शन आगु जाऊ मेडिकल शिक्षा दिगरे श्रीरंगर रेभोल्यूशनरी थॉट जितेबाला नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन करथिले एजुकेशनल बॉयकॉट करथिले ब्रिटिश सिस्टम को जे आमर जोटा प्राचीन एजुकेशनल सिस्टम अच्छी आर्य सभ्यतार इट वाज सेकेंड टू नन तादेह एत सुंदर साइंटिफिक व्यवस्था रही गोटे व्यक्ति को संपूर्ण भाव में विकसित करने से जिनटा से आने चाहूले नेशनल मेन स्ट्रीम को एवं सेटा से प्रयास थिला एवं आमर ओडिशा रे जो कार्यक्रम होची शिक्षा दिगरे आमे आगेचु एवं पूर्णांग शिक्षा केन्द्र मान सृष्टि होती पूर्णांग शिक्षा प्रचलन हो तो स्वास्थ्य दिगरे मेडिकल शिक्षा रे कहीं पूर्णांगता आसब ना मत ये जिनटा बहुत दिन मो भितर रही आम जो मेम्बर मैंने अच्छु श्री अरविंद मेडिकल एसोसिएशन आम एथर प्रत्येक टॉपिकटा जो भाई आमको गोटे अभूतपूर्व भाव में आसे आमर दिग्दर्शक एवं अच्छा डॉक्टर एस दलाल बहुत प्रोफेसर देशबंधु बिष्ट भी आम सांगे थे आगु आसी स्पिरिचुअल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ से ही पृथ्वी को देते निम्हांस रे गोटे कंसोर्शियम करथिले
जो कि बहुत बुद्धिजीवी डाक्तर सेंट्स सन्यासी इवन मनोज दास भी जाइए से कंसोर्टियम एवं समस्ते निर्णय कले जे स्वास्थ्य केवल खाली मानसिक शारीरिक सामाजिक सुस्थता नुह तादेह आध्यात्मिक सुस्थता भी बहुत बहुत बेसी गुरुत्वपूर्ण से बहुत दिन प्रचलन होता किंतु जितेबाला सरकार स्तर में प्राइवेट स्तर में मेडिकल शिक्षा दि जाऊँगी ए दिगटा मोटे से मैंने जोर दौना एवं किछि अन्य अन्य भाषा पूरेकरी नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स मुझे निजे जो थे कि कॉग्निटिव एफेक्टिव आउ साइकोमोटर डोमेन को करा जाए कॉग्निटिव हूँ ज्ञानर दिग एफेक्टिव हूँ एटीट्यूड बा मनोभावर दिग साइकोमोटर बा स्किलटा गोटे डाक्तर स्किल दरकार गोटे एटीट्यूड दरकार एवं ज्ञान निश्चय दरकार ज्ञान नहले सब गुड़िक हो पार किंतु ताधे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इंटुइटिव एस्पेक्ट दरकार बोधिशक्ति डेभलप करने दरकार तापर स्पिरिचुअल दिगटा जो आध्यात्मिक दिगटा दरकार केमिति से डाक्तर ताको एक्सेस करिवो से जो डोमेन गुड़ाक एवं ता भितर जदि आमे करिकुलम भितर न रखिबू ताको जदि एक्सपोज न करिवू एवं जी भी पाठ पढ़ाऊँ सी भी से दिगटा को जदि निजे अवलंबन न करती तार उदाहरण न उठती एग्जाम्पल न उठती से ए प्रयासटा होती जे सबू डाक्तर पीढ़ी को मेडिकल टीचर्स पर्टिकुलरली जे ए फोरम को आनिबा कार्यक्रम उपसंहार थिला बेस भावविह्वल उपस्थापिका सफल कार्यदक्षता करा जाइथिला सम्मानित एवं परिशेष गान करा जाइथिला राज्य संगीत वंदे उत्कल जननी।